Ribosomes. Ribosomes, as we have studied earlier, during the structure of the prokaryotic and eukaryotic cell, what is the ribosomes? These are the membraneless organelle. So these are called the naked organelle. Now first regarding the discovery and isolation of the ribosomes. First, ribosomes is called the protein factory. Second is the naked organelle. Without membrane. Ribosomes, first they are isolated by aviculadi. Aviculadi isolate the ribosomes from cytoplasm. Then discovered in the plants by the Robertson and Brown. क्लैडी ने ये कब दिया था आपको? इसको डिस्कवर जब किया था 1943 में. देन रॉबर्टसन एंड ब्राउन डिस्कवर्ड इन प्लांट सेल. Then George Pallady discovered in animal cell in 1953. In the bio 1953 is a very important session in which various discovery are occur. The structure of the DNA is also discovered by the Watson and Crick and get the credit prize in 1953. Now due to the presence and name ribosomes, वो भी किसने दिया? Pallady ने दिया. So these are called Pallady particles. ठीक है. Ribosomes are found in both prokaryotes and eukaryotes. They are visible with electron microscope. Under electron microscope, they appear as a dense granule. Appear as a dense or granular particles. ठीक है. Now the types of ribosomes. टू टाइप्स होती है. वन इज द 70S, सेकेंड इज द 80S. 70S ribosomes are found in prokaryotes and cell organelle of eukaryotes. सेल ऑर्गेनेली आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियोसोम्स, और प्लास्टिड में प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोसोम्स. माइटोराइबोसोम्स होंगे तो क्या बोलेंगे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया में है तो माइटोराइबोसोम्स,
और प्लास्टिड में प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिडोसोम्स। ठीक है। 70s and 80s, 80s is the characteristics of eukaryotes. Here what is the S? S is the sedimentation coefficient. S stands for sedimentation coefficient. It is also called Swedberg unit. Swedberg unit. It helps in measure the density and size of ribosomes indirectly. Indirectly, it measures density and size of ribosomes. These are also NCERT points as such. Important है, किसको डिटरमाइन करता है, इट डिटरमाइंस द डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम्स. Now the meaning of the S is clear. Every ribosomes is consist of two part. Ribosomes is consist of two part. One is the large size, second is the small size. कोई भी राइबोसोम्स है वो टू पार्ट का सब यूनिट का बना हुआ है. वन इज द लार्जर सब यूनिट, सेकंड इज द स्मॉलर. ठीक है. लार्जर सब यूनिट इज द डोम शेप, smaller is the oval shape. ठीक है. When they are attached, it is called association. Both the ribosomes 70 or 80 consist of two subunit. One is the larger, second is the smaller. The 70 chromosome subunits are, one larger is the 50s, smaller is the 30s. But in case of eukaryotes, in 80s, larger subunit is the 60s and smaller is the 40s. And how? This is like the ribosomes. Ribosomes has a larger part, this is the smaller part. When they are the separated, this is called dissociated form. When they get attached, अब देखो ये अटैच हो गया तो ये ओवरलैप हो गया ऐसे, तो इसका साइज क्या हो गया, छोटा. तो ये आपका कैसा हो गया, 50 + 30. जब अटैच हो गए तो एसोसिएशन कलेक्टिवली क्या बन गया, 70s. 60 और 40, सॉरी 50 और 30 when get attached they help in the formation of 70s. 60 and 40 when they get attached help in the formation of 80s. ये एसोसिएशन कब होती है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. इन दोनों को जब वो अटैच है तो क्या है, एसोसिएशन. ठीक है. एसोसिएशन इसकी किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीशियम कंसंट्रेशन. इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीशियम कंसंट्रेशन. यदि मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर, तो ये रहते हैं एसोसिएटेड. यदि इससे क्या हो जाए, बिलो दिस, डिसोसिएटेड, और अबव दिस ये अटैच हो जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, डाइमर.
हो गया। ये बिहेवियर है किसका, राइबोसोम के सब यूनिट्स का। प्रोटीन, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस दे गेट एसोसिएटेड, एसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीशियम कंसंट्रेशन, व्हेन मैग्नीशियम कंसंट्रेशन इज 0.001 तो इन दैट केस इट गेट एसोसिएटेड, और जब इसकी कंसंट्रेशन इससे क्या हो जाती है ज़्यादा, तो वो कैसे हो जाते हैं, डिसोसिएटेड। ठीक है, ज़्यादा हो जाएंगे तो डाइमर और कम हो जाते हैं तो डिसोसिएटेड। नाउ द 50s और 30s सब यूनिट आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड आरएनए। यदि हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में क्या है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोपार्टिकल। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स भी बोल देते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन किसके बेस पे, कंपोजिशन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द राइबोसोम्स। अब आरएनए और प्रोटीन की कंपोजिशन डिफरेंट होती है 70s में और किस में, 80s में। इन केस ऑफ 70s it is ratio of 60 to 65% each of प्रोटीन। ठीक है, 70s के अंदर जो रेशो होती है वो क्या है, प्रोटीन। सॉरी एक मिनट, ये तो आपका क्या है 62 लेके 65% ये आरएनए होता है, ये क्या होता है, आरएनए। और ये आरएनए कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन। आरएनए कौन सा है, राइबोसोमल, इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन केस ऑफ 70s आरएनए की कंपोजिशन कितनी है, 60 to 65%, और प्रोटीन इसमें कितना, रेस्ट इज द प्रोटीन। प्रोटीन इसमें कितना रह गया आपका, 35 to 40%। और रफली हम इसकी कंसिडर करें इसकी रेशो को, तो ये कितनी हो गई, 60% to 40%। ठीक है, इन केस ऑफ 80s द रेशो इट कंटेन मोर प्रोटीन, इट कंटेन मोर प्रोटीन, और मोर प्रोटीन है तो इसमें क्या है, आरएनए रेशो प्रोटीन, आरएनए नियर अबाउट इसमें कितना है 45%, और प्रोटीन इसके अंदर कितना होता है, रेस्ट ऑफ 55%, और रेशो इज कंसिडर अप्रोक्सीमेट 40 to 60% नियर अबाउट, यानी ये कॉन्ट्रोवर्सी है। 80s में प्रोटीन ज़्यादा हैं और 70s के अंदर आरएनए क्या है, ज़्यादा। अब देखो ये जो 70s आरएनए है, 70s आरएनए ये कितनी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स। और 3 टाइप्स इसकी कौन कौन सी होती है, एक तो होता है इसके अंदर 23s, एक होता है इसके अंदर क्या है 5s, एक होता है 16s। 3 टाइप्स इसकी कौन कौन सी है, 23s, 5s और 16s। और जो ये 23 और 5s है ये किस यूनिट में मिलते हैं आपके, 50s में। किस में मिलते हैं ये, 50s में, यानी लार्जर सब यूनिट में। और 16s वाला किस में मिलता है, 13s में। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर इसमें किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। और प्रोटीन की जब फॉर्मेशन हो रही है इसमें ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और ये कितने प्रोटीन्स बनाते हैं, 34 प्रोटीन्स बनाते हैं, 34 प्रोटीन। और 16s इसके अंदर जो प्रोटीन बनाता है वो कितना बनाता है, 21 प्रोटीन। ये कंपोजिशन है इसकी 70s और 80s की। यदि हम बात करें 80s की, 80s में राइबोसोमल आरएनए की कितनी टाइप्स है, 4s,
यानी 4 टाइप्स है। और ये 4 टाइप कौन कौन सी है? 28S, सेकेंड 5.8S sedimentation, then 5S. These are the 3 types, and last is the 18S. Like this, these 3 subunits are present in the 60S. It is present in the 40S, and when they are helping the protein formation, it help in the formation of these 3 helping कितने प्रोटीन्स बनाते हैं? 14 प्रोटीन, यानी ये 40 प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। और जिसका स्मॉलर यूनिट है ये कितना बनाता है? 33 प्रोटीन। दिस इज द कंपोजिशन रिगार्डिंग द राइबोसोम्स। राइबोसोम में क्या क्या बताया? ये कितने प्रोटीन बना रहा है? 34 प्रोटीन। ये कितने प्रोटीन बना रहा है? 21 प्रोटीन। और इसमें कौन कौन सी टाइप्स थी? 123S और एक क्या है? 5S। और बट 70S इसमें 16S। और 16S के अंदर हमारे क्या थे? कितने प्रोटीन्स बनते हैं? कितने प्रोटीन्स बनाता है ये? 40 प्रोटीन। और इसमें टाइप्स है किसकी? आरएनए की कौन कौन सी है? 28S, 5.8S और 5S। एंड 40S टाइप में कितने प्रोटीन्स हैं? कितने प्रोटीन्स हैं इसके अंदर? 33 प्रोटीन। और इसमें टाइप कौन सी है राइबोसोमल? ये आरएनए है। और यहाँ पे ये भी क्या है? आरएनए। और इसमें कितने आपके 33 में कितने प्रोटीन्स बनते हैं? ये आपके टाइप्स कौन सी होती है? 18S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। अब देखो एक्सेप्ट जो हमने बताया सेल ऑर्गेनेली, एक एक्सेप्शन लिख रही हूँ मैमल्स में। मैमल्स माइटोकॉन्ड्रिया has 55S ribosomes, also discussed during the structure of the mitochondria. This is regarding about the structure of the ribosomes and types of the ribosomes.